ایک بادشاہ کے ہاں ایک بچی پیدا ہوتی ہے جو برف کی جیسی سفید اور گلاب کی جیسی حسین ہوتی ہے۔ دراصل اس کی ماں رانی نے کچھ عرصہ پہلے برفانی علاقے میں ایک گلاب کھلتے دیکھا تھا۔ پھول کو چھوتے وقت رانی کے ہاتھ میں کانٹا چبھنے کی وجہ سے کچھ خون کے قطرے برف پر گر گئے تھے اور اس نے دعا مانگی تھی کہ اس کے ہاں اس گلاب کی جیسی حسین بیٹی ہو جس کا رنگ اس برف کی طرح سفید، ہونٹ اس خون کی طرح سرخ، بال راون کے جیسے سیاہ اور دل اس گلاب کے جیسا مضبوط ہو۔ رانی اس بچی کا نام سنو وائٹ رکھ دیتی ہے۔ آہستہ آہستہ وہ بچی بڑی ہو جاتی ہے اور اس بڑھتی عمر کے ساتھ اس کا حسن بھی بڑھتا جاتا ہے۔ سنو وائٹ جتنی حسین ہوتی ہے اتنی ہی بہادر بھی۔ ایک روز اسے ایک زخمی کوا نظر آتا ہے تو وہ اسے گھر لے آتی ہے اور اس کی مرہم پٹی کر کے علاج کرتی ہے۔ اسی طرح ہنسی خوشی ان کا وقت بیت رہا ہوتا ہے کہ اب کی بار سردی کا موسم ان کے لیے اندھیری رات ثابت ہوتا ہے جس میں رانی وفات پا جاتی ہے اور یوں ہنستے بستے خاندان پہ دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے۔ بادشاہ بھی اس غم میں ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے۔ تو بادشاہ کی کمزوری کا فائدہ اٹھانے کی غرض سے کالے جادو والی ایک فوج ان کی سلطنت پر حملہ کر دیتی ہے، مگر بادشاہ جم کر مقابلہ کرتا ہے اور حملہ آور فوج کو تباہ کر ڈالتا ہے۔ اگلے سین میں بادشاہ جب قیدیوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو اسے ان میں ایک انتہائی خوبصورت لڑکی نظر آتی ہے جس کا نام روینا ہوتا ہے۔ بادشاہ اس کے حسن میں گم ہو کر سارے غم بھول جاتا ہے اور اس سے شادی کر کے اسے اپنی رانی بنا لیتا ہے، مگر یہ شادی بادشاہ کی شادی کی بجائے اس کا جنازہ ثابت ہوتی ہے کیونکہ وہ لڑکی بادشاہ کو شادی کی رات ہی مار ڈالتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میرے حسن کی وجہ سے ہی بچپن میں ایک بادشاہ مجھے میرے والدین سے چھین کر لے گیا تھا اور اب میں اپنے اسی حسن کے سہارے ہر ایک بادشاہ سے میرے ساتھ ہوئے ظلم کا بدلہ لوں گی۔ بادشاہ کو مار کر اگلے سین میں روینا محل کا دروازہ کھول دیتی ہے تاکہ باہر انتظار کرتی اس کی فوج اندر آ کر محل پہ قبضہ کر لے۔ اس کی فوج کا کمانڈر روینا کا بھائی فین ہوتا ہے۔ محل میں مچا شور سن کر سنو وائٹ بھی جاگ جاتی ہے اور باہر آ کر دیکھتی ہے کہ اس کے والد کو مار دیا گیا ہے اور محل کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ بادشاہ کے وزیر اور سپاہی محل سے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ ڈیوک ہیمنڈ اور اس کا بیٹا ولیم جو سنو وائٹ کا بچپن کا دوست ہوتا ہے اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں مگر کامیاب نہیں ہو پاتے اور سنو وائٹ وہیں پھنس جاتی ہے۔ روینا جو دراصل ایک بہت بڑی جادوگر ہوتی ہے محل میں اپنا جادوئی شیشہ رکھواتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ بتا سب سے زیادہ خوبصورت کون ہے، تو شیشہ جواب دیتا ہے کہ آپ ہی سب سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ اگلے سین میں وہ سبھی قیدیوں کو مارنے کا حکم دیتی ہے، تاہم سنو وائٹ کو مارنے کی بجائے ایک ٹاور میں بند کروا دیتی ہے کیونکہ اس کے خیال میں شاہی خون کسی نہ کسی موڑ پر اس کے کام آ سکتا ہے۔ روینا کے کالے جادو کے سبب سارا ملک تباہ و برباد ہو جاتا ہے، ہر طرف جیسے کالی رات چھا جاتی۔ ادھر ٹاور میں بند سنو وائٹ اب جوان ہو چکی ہوتی ہے کہ تبھی ایک اور لڑکی گریٹا کو بھی ایک روز سنو وائٹ کے ساتھ ہی قید میں ڈال دیا جاتا ہے۔ وہ سنو وائٹ کو بتاتی ہے کہ ڈیوک ابھی بھی زندہ ہے اور وہ ابھی بھی بادشاہی کی طرف سے جنگ لڑ رہا ہے۔ وہ اسے ان کے قلعے کے بارے میں بھی بتا دیتی ہے۔ ادھر روینا اپنے حسن کو مزید قاتل بنانے کے لیے دودھ میں نہا رہی ہوتی۔ اگلے روز اس کے سپاہی ایک باپ بیٹے کو پکڑ لاتے ہیں جنہیں محل کے لیے آتی سپلائی پہ حملہ کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا۔ روینا لڑکے کا چہرہ ہاتھ میں لے کر کہتی ہے کہ تم تو بڑے ہینڈسم ہو، کس کام میں پڑ گئے ہو؟ تو وہ لڑکا چاقو سے رانی پر حملہ کر دیتا ہے جس پر رانی اسے مار ڈالتی ہے اور پھر اس کے والد کو رہا کر دیتی۔ اگلے سین میں رانی کو احساس ہوتا ہے کہ عمر بڑھنے کے ساتھ اس کا حسن ماند پڑتا جا رہا ہے، تو وہ گریٹا کو بلواتی ہے اور اس کی جوانی خود میں ٹرانسفر کر کے خود جوان ہو جاتی ہے اور گریٹا کو بوڑھا کر دیتی ہے۔ اس کے بعد وہ جادوئی شیشے سے پوچھتی ہے کہ بتاؤ آج سب سے زیادہ خوبصورت کون ہے، تو شیشہ اسے بتاتا ہے کہ آج کے روز آپ کی بجائے کوئی اور سب سے زیادہ خوبصورت ہے جس کا نام سنو وائٹ ہے، جس کی معصومیت تمہاری پاورز کو ختم کرتی جا رہی ہے، تاہم اگر تم اس لڑکی کا دل کھا لو تو تم جوان ہو کر ہمیشہ کے لیے امر ہو جاؤ گی۔ یہ سنتے ہی رانی فن سے کہتی ہے کہ سنو وائٹ کا دل نکال لائے۔ ادھر این اسی ٹائم پہ سنو وائٹ کے سیل کے باہر میں وہی کوا آتا ہے جس کا سنو وائٹ نے علاج کیا تھا۔ وہ اسے راشن دان کے باہر لگے ایک بڑے کیل کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ سنو وائٹ وہ کیل نکال کر اپنے پاس چھپا لیتی ہے، تبھی وہاں فن پہنچ جاتا ہے۔ جو ہی فن سنو وائٹ کو چھونے لگتا ہے تو وہ اسے کیل گھونپ کر بھاگ جاتی۔ سبھی لوگ سنو وائٹ کو پکڑنے بھاگتے ہیں۔ وہ بوڑھا آدمی بھی سنو وائٹ کو بھاگتے دیکھ لیتا ہے جس کا بیٹا مار کر روینا نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ تبھی وہ کوا پھر سے سنو وائٹ کو ایک غار نما راستہ دکھاتا ہے جس سے ہوتے ہوئے وہ سمندر میں جا گرتی ہے۔ وہاں سے نکل کر وہ کنارے پہ آتی ہے تو وہاں ایک سفید گھوڑا موجود ہوتا ہے جس پر بیٹھ کر وہ ڈیوک کے ٹھکانے کے لیے روانہ ہو جاتی ہے۔ کوے مسلسل اس کی رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس دوران روینا کے سپاہی بھی اس کے پیچھے لگے ہوتے ہیں۔ ان سے بھاگتے بھاگتے وہ اندھیرے جنگل میں جا پہنچتی ہے جہاں پر روینا کا جادو بھی کام نہیں کرتا، نہ ہی یہاں سے آج تک کوئی زندہ نکل پایا ہے۔ سنو وائٹ کا گھوڑا بھی ایک دلدل میں پھنس کر گر جاتا ہے، تاہم سنو وائٹ ہمت نہیں ہارتی اور پیدل ہی بھاگنے لگتی ہے۔
मगर जल्द ही वो एक धुंध में घिरे गड्ढे में गिर जाती है। ये ऐसी धुंध होती है जिसे सूंघने से इंसान को चक्कर आने लगते हैं और उसे हर तरह के खौफ घेर लेते हैं। स्नो वाइट के साथ भी ऐसा ही होता है और वो बिलाखिर वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। इधर महल में रानी स्नो वाइट के अंधेरे जंगल में चले जाने की खबर सुनकर आग बगोला हो जाती है और अपने भाई फिन से कहती है कि कोई ऐसा बंदा ढूंढ लाओ जो स्नो वाइट को उस अंधेरे जंगल से वापस ला सकता हो। अगले सीन में शराब की एक दुकान पर एरिक नाम का एक लड़का झगड़ा होता है। यही वो आदमी है जो उस अंधेरे जंगल के रास्तों से वाकिफ होता है। तो फिन उसे पकड़ के रानी के सामने पेश करता है। पहले तो एरिक इस काम से इनकार कर देता है, मगर जब रानी उसे लालच देती है कि अगर मेरा ये काम कर दोगे तो मैं तुम्हारी फोत हुई बीवी को जिंदा कर दूंगी, तो वो मान जाता है और वो फिन और उसके सिपाहियों को लिए अंधेरे जंगल में पहुंच जाता है, जहाँ स्नो वाइट को भी अब होश आ चुकी होती है कि तभी एरिक उसे पकड़ लेता है। तो स्नो वाइट उससे कहती है कि मुझे रवेना के हवाले करने का जुर्म ना करो, वो तो मेरा दिल निकाल के खाना चाहती है। मगर एरिक उसकी एक नहीं सुनता। वो उसे पकड़कर फिन के पास लाता है और कहता है कि मैं ये लड़की तुम्हारे हवाले कर दूंगा, मगर इससे पहले तुम अपना वादा पूरा करो, मेरी बीवी को जिंदा कर दो। तो फिन उससे कहता है कि तुम कैसे बेवकूफ आदमी हो, मेरी बहन भला किसी मुर्दे को कैसे जिंदा कर सकती। ये सुनते ही एरिक उन पर हमला कर देता है और सभी को वहीं काट डालता है, जबकि फिन इस लड़ाई के दौरान गड्ढे में गिरकर धुंध वाले जाल में फंस जाता है। स्नो वाइट एरिक से कहती है कि मुझे ड्यूक के कले तक पहुंचा दो, इसके बदले मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दिलवाऊं। तो एरिक कहता है कि ठीक है। उधर ड्यूक के कले में वो बूढ़ा आदमी बता रहा होता है कि मेरे बेटे ने रवेना पर चाकू से हमला किया था, मगर रवेना का खून तक नहीं निकला था, यानी उसे हथियारों से नहीं मारा जा सकता। वो उन्हें ये भी बताता है कि स्नो वाइट जिंदा है और वहाँ से भागकर अंधेरे जंगल में चली गई है। ये सुनते ही ड्यूक का बेटा विलियम स्नो वाइट को ढूंढने निकल पड़ता है। ड्यूक उसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि उन लोगों के पास अब बहुत ही कलील सिपाही रह गए होते, मगर विलियम सुनी अनसुनी करके स्नो वाइट को ढूंढने निकल जाता है। दूसरी तरफ जंगल में स्नो वाइट सांपों के दरमियान फंस जाती है, तो एरिक उससे उनसे बचा लेता है और उससे कहता है कि डरो नहीं, ये जंगल तुम्हारे डरने ही की वजह से तुम पर हावी होने लगता है। इधर महल में फिन भी मजीद सिपाही लेकर स्नो वाइट की तलाश में निकल पड़ता है। रास्ते में उसे विलियम मिलता है और कहता है कि क्या तुम्हें तीर अंदाज की जरूरत है। तो फिन अपने सिपाहियों को उसे मारने को कहता है, मगर विलियम उसके तीर अंदाज को मार डालता है। तो फिन उसे अपने सिपाहियों में शामिल कर लेता है। उधर जंगल में भटकते एरिक को स्नो वाइट का सामना एक बहुत बड़े अफरीद से हो जाता है। एरिक उससे लड़ने की कोशिश करता है, मगर वो एरिक को पटक कर बेबस कर देता है। वो एरिक को मारने ही वाला होता है कि स्नो वाइट उसके सामने आ जाती है। हैरानकुन तौर पर वो अफरीद स्नो वाइट को कुछ नहीं कहता और चला जाता है। वो दोनों थोड़ा और आगे जाते हैं तो उन्हें कुछ औरतें मिलती। वो इन्हें अपनी कश्ती में बिठाकर अपने कबीले में ले जाती हैं, जहाँ हर लड़की के गालों पर खराशों के निशान लगे होते हैं, जबकि कबीले के सारे मर्द किसी जंग पे गए होते। कबीले की सरदार एरिक की मरहम पट्टी करते हुए उसे स्नो वाइट की हकीकत बता देती, जिसके बाद एरिक स्नो वाइट के पास आता है और गिला करता है कि आपने मुझसे ये बात क्यों छुपाई। तो वो बताती है कि मैं तुम्हें जानती जो नहीं थी तो कैसे भरोसा कर लेती। उसी रात को एरिक वहाँ से जाने के लिए निकल पड़ता है, मगर तब भी फिन अपने सिपाहियों के साथ इस कबीले पर हमला कर देता है और वो लोग इस कबीले के सारे घरों को आग लगा देते हैं। विलियम की यही कोशिश होती है कि स्नो वाइट को किसी तरह लेकर वहाँ से निकल भागे, मगर दूसरी तरफ एरिक भी आग को देखकर वापस आ जाता है और स्नो वाइट को वहाँ से निकाल ले जाता है। वो दोनों काफी दूर जाकर एक जगह आराम के लिए रुकते हैं, तो कुछ बौने आकर उन्हें पकड़ लेते हैं और उन्हें बांधकर दरख्तों के साथ उल्टा लटका देते। दरअसल इन लोगों की एरिक के साथ जाती दुश्मनी होती है, क्योंकि एरिक उनकी शराब चुरा लिया करता था। बोने एरिक की तो कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं होते, तो स्नो वाइट उनसे कहती है कि मैं इस सल्तनत की शहजादी हूँ। तो एक बड़ी उम्र का बोना कहता है कि ये लड़की बिल्कुल सही कह रही है। तभी वो लोग फिन और उसके सिपाहियों को आता देख लेते हैं और जल्दी से एरिक और स्नो वाइट को खोलकर अपने साथ खुफिया ठिकाने पर ले जाते हैं, जो परियों का देश होता है, जहाँ हर तरफ हरियाली और खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। एक मुकम्मल अनोखी दुनिया, जैसे कोहकाफ की कोई ख्याली जादू नगरी हो। रात को जब ये सभी लोग बैठे गपशप कर रहे होते हैं, तो बोनों को महसूस होता है कि जैसे उनकी सारी बीमारियां खत्म हो गई हों। अगली सुबह स्नो वाइट देखती है कि परियां उसके साथ बात करने की कोशिश कर रही हैं, तो वो उनके पीछे चली जाती। रास्ते में वो इस अनोखी दुनिया की सारी मखलूकात को देखती है और बिलाखिर वो एक बड़े सफेद हिरन के पास जा पहुँचती है, जो उसके आगे झुक जाता है। बोने भी उसके पीछे आगे होते हैं और वो भी ये सारा मंजर देख लेते हैं। तो एक मोना कहता है कि ये इस बात का इशारा है कि ये शहजादी इस देश को पहले के जैसा पुरअमन बना देगी। वो अपने साथियों से कहता है कि क्या तुम लोगों ने महसूस नहीं किया कि इस लड़की के आते ही हम में से बीमारियां खत्म हो गई हैं। तभी फिन अपने सिपाहियों के साथ यहाँ हमला कर देता है
और हर तरफ आहो बका मच जाती है। विलियम स्नो वाइट को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है कि वो घोड़े से गिर जाता है। गस उसे मारने ही वाला होता है कि वो कहता है रुक जाओ, मैं विलियम हूँ, और तभी स्नो वाइट भी उसे पहचान जाती है। दूसरी जानिब एरिक फिन से लड़ा होता है, मगर फिन का पलड़ा भारी होता है। फिन उसे मार भी रहा होता है और साथ बता रहा होता है कि उसने एरिक की बीवी को कैसे मारा था। ये सुनते ही एरिक का खून जोश मारता है और वो फिन को धकेलते हुए एक नोकीले दरख्त में घोंपकर मार डालता है। इसकी मौत के साथ ही उधर महल में रवेना भी तड़पने लगती है, क्योंकि उनका आपस में कनेक्शन होता है। तभी फिन का एक सिपाही स्नो वाइट पर तीर चलाता है, मगर गस वो तीर खुद पर लेकर कुर्बान हो जाता है और स्नो वाइट को बचा लेता है। अगले सीन में ये सभी लोग गस के लिए अलविदाई तकरीब करते हैं और कहते हैं कि बादशाह की मौत के बाद से हम लोग मुसलसल भटक रहे हैं और आज ये अहद करते हैं कि अपनी आखिरी सांस तक स्नो वाइट का साथ देंगे। सुबह ये लोग आगे चल पड़ते हैं। जंगल, पहाड़, नदियाँ क्रॉस करते उन्हें कई दिन गुजर जाते। तभी एक रोज सुबह सुबह जब स्नो वाइट बर्फ में टहल रही होती है तो विलियम भी उसके पास आ जाता है और उसके साथ अपने बचपन के बीती दिनों की बातें करने लगता है। स्नो वाइट भी अपने बचपन के सुनहरे दिन याद करके जज्बाती हो जाती है। विलियम उसे एक सेब खाने को देता है, मगर जो ही वो सेब खाने लगती है तो उस पर जादू होने लगता है, क्योंकि वो सेब नहीं बल्कि काला जादू होता है। कि तभी विलियम का रूप बदलने लगता है और पता चलता है कि ये विलियम नहीं बल्कि रवेना है। वो कहती है कि मेरा जादू खून से बना था, जिसे किसी हसीना के खून से ही बदला जा सकता था, और ऐसी हसीना तुम ही थी जो उसे बदल सकती थी। रवेना स्नो वाइट को मारने ही वाली होती है कि एरिक पहुंचकर उस पर हमला कर देता है, तो रवेना कवों में बदलकर वहां से उड़ जाती है। इस दौरान विलियम भी पहुंच जाता है। विलियम स्नो वाइट को गोद में उठाने की कोशिश करता है, मगर उसका जिस्म बिल्कुल साकित अकड़ा होता है। वो उसे किस करता है तो उसकी एक आंख से आंसू टपकता है, जिसे कोई भी नोटिस नहीं करता। अगले सीन में ये लोग स्नो वाइट को उठाकर ड्यूक के किले में पहुंच जाते हैं, जहां आखिरी रसूमात के लिए उसे लिटा दिया जाता है। रात को एरिक शराब पीकर नशे की हालत में स्नो वाइट के पास आता है और अफसोस करता है कि काश वो उसके साथ होता तो उसे बचा लेता। वो कहता है कि मुझे तुम्हारे दिल और तुम्हारी जुर्रत में अपनी बीवी सारा नजर आती, मगर जो भी मुझे पसंद आता है जाने क्यों वो मुझसे छीन लिया जाता है, और फिर उसे किस करके वहाँ से चला जाता है। ताहम उसके प्यार के इजहार से स्नो वाइट की दूसरी आंख से भी आंसू निकल आता है, तो रवेना का जादू टूट जाता है, क्योंकि उस पर हुए जादू के स्पेल को दो सच्ची मोहब्बत के इजहार से टूटना होता है, और यूं स्नो वाइट जिंदा होकर खुद ही उठकर बाहर आ जाती। वो सभी को इकट्ठा करके तकरीर करती है और कहती है कि अब हमें रवेना पर एक भरपूर हमला करना होगा और उससे अपना वो सब कुछ छीन लेना होगा जो हमसे उसने हथियार रखा है। ये जंग हम सब की बका का मामला है, कब्जा छुड़ाना होगा या मरना होगा। हम उसे बता देंगे कि हम अपने हक और आजादी के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। तो सभी लोग उसका साथ देने के लिए पुरजोश हो जाते हैं और उसी रात ही उनकी फौज महल पे हल्ला बोलने के लिए कूच कर जाती। उधर महल में रवेना ने दर्जनों लड़कियों की जवानी नचोड़कर फिर से ताकत हासिल कर ली होती है और इस जंग के लिए तैयार होती है। स्नो वाइट भी अपनी फौज लिए पहुंच जाती है, मगर महल का दरवाजा तोड़ने का उनके पास कोई जरिया नहीं होता। तो स्नो वाइट कहती है कि एक रास्ता है सीवरेज वाला, जिसके जरिए वो खुद भी महल से भागी थी। तो वो बोनो को उस रास्ते से अंदर भेज देती है। बोने चुपचाप इस रास्ते से अंदर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें अंदर से गेट खोलना होता है। तभी रवेना बाहर मौजूद फौज पर महल से हमला करवा देती है, जिसमें उन पर आग के गोले बरसाए जाते हैं। ताहम स्नो वाइट की फौज इस हमले से बिल्कुल भी नहीं घबराती और महल की तरफ पेशकदमी जारी रखती है। इधर महल में जब बोने गेट खोल रहे होते हैं तो कुछ सिपाही उन्हें देख लेते हैं और दरवाजे की रस्सी काट देते हैं, जिससे दरवाजा खोलना नामुमकिन हो जाता है। जबकि बाहर मौजूद उनकी फौज मौत से खेल रही होती, तो सारे बोने रस्सी के साथ खुद ही इकट्ठे लटक कर गेट खोलने में कामयाब हो जाते और इनकी फौज अंदर दाखिल होकर रवेना की फौज के साथ भिड़ जाती। स्नो वाइट उन्हें वहीं लड़ता छोड़कर खुद ही रवेना के पीछे अंदर चली जाती। ताहम एरिक उसे जाते देख लेता है, तो विलियम को लिए वो भी उसके पीछे चला जाता है। अंदर पहुंचकर स्नो वाइट रवेना को ढूंढ लेती है। इधर एरिक भी सिपाहियों को लिए रवेना को घेर लेता है, मगर रवेना कांच की फौज को जिंदा कर देती है, जो एरिक के सिपाहियों पर कहर बन जाते हैं और खुद रवेना स्नो वाइट पर हमला कर देती। वो उसे काबू करके मरते हुए सिपाही दिखाकर कहती है कि इन्हें मरता देखो, इनकी मौत की जिम्मेदार तुम ही हो जो उन्हें यहाँ लाई हो। अगले सीन में रवेना आग में खड़ी हो जाती है और स्नो वाइट से कहती है कि देखो मेरी ताकत, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकती। इसके बाद वो स्नो वाइट को मारने के लिए उस पर हमला कर देती है, मगर स्नो वाइट एरिक के बताए हुए तरीके से उसके दिल पर वार करती है, जिससे उसका खून बहने लगता है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता बूढ़ी होकर मर जाती। आखिरी सीन में स्नो वाइट के सर पे ताज सजाकर उसे रानी मुंतखब कर लिया जाता है और सल्तनत में अमन और इत्तेफाक लौट आता है। इसके साथ ही मूवी खत्म हो जाती। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। मजीद ऐसी ही अच्छी मूवी स्टोरीज के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।